So hello everyone, welcome back all of you to my YouTube channel. So guys, today I'm gonna teach you all lots of special sentences, structures. मैं आज आप लोग को बहुत सारे sentences, advanced sentences और structure सिखाने वाला हूँ through the help of one activity. Actually, these students have appeared here in the test. They were given lots of sentences. How many sentences were you given? 45 sentences. Yeah, these people have been given 45 Hindi sentences that they have to translate into English. Now it's time to see whether they have translated the sentences correctly or not. तो इन्हीं के जरिए से by the help of these people आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ और सभी sentences को सीखने का कोशिश करेंगे. So are you all ready? Yes. Okay. What is the first sentence? मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ. I want to write a book. मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ. I want to write a book. Second sentence. हर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है. Everyone want to get up early in the morning. हर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है. हर कोई चाहता है. Everyone want to. That is wrong. हर कोई उठना चाहता है. Everyone के साथ इफेक्ट लगता है. Everyone wants to get up early in the morning. Okay. First sentence. मैं तेज गेंदबाज बनना चाहता हूँ. I want to become a faster bowler. Faster bowler. I want to become a fast bowler. Okay. What? I want to become a fast bowler. Very good. Next question छोड़ू. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाएं. I want that you learn me English. That is wrong. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाएं. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाएं. तो मैं किसको चाहता हूँ? आपको. I want you to teach me English. How will you translate? I want you to teach me English. वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं. He wants that I forgive to him. No. वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं. वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं. तो वह यहाँ पे क्या कहोगे? He wants me to forgive him. He wants me to forgive him. Okay. Next sentence. वह सही से नहीं बैठ पाता है. He doesn't sit properly. वह सही से नहीं बैठ पाता है. मुझे भी यहाँ पे सस्पिशन था कि आप ऐसे लिखोगे. यहाँ पे देखिए पाना. पाना के लिए आप स्पेशल स्ट्रक्चर अनेबल टू का प्रयोग करेंगे. यहाँ पे वह सही से नहीं बैठ पाता है. He is unable to sit properly. He is unable to sit properly या तो he is not able to sit properly. Okay. Next question. मैं कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ. I am not able to go to school for some days. हाँ, आपका आंसर बिल्कुल गलत है. मैं कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ. मैं कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ. इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो किया जाएगा. I have not been able to go to a school for many days. कई दिनों से. I have not been able to go to a school for many days. Next sentence क्या है? मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ. I couldn't forget you. No. सबसे पहले देखिए मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ. सेंटेंस पा रहा हूँ. जहाँ भी पा रहा वाला सेंटेंस आता है वहाँ पे एबल टू अनेबल टू को दिमाग में रखना है. ठीक है. तो मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ. क्या कहेंगे? I am unable to forget you. Yes. I am unable to Forget. very good. Next sentence. तुम्हारा फोन उसके पास होगा. Your mobile will be to him. That's wrong. तुम्हारा फोन उसके पास होगा. देखिए सेंटेंस में यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है प्रेजेंट में. तो यहाँ पे ऐसे कहोगे उसके पास होगा. She would have your mobile phone. या she would have your phone. Okay. Next sentence. वह एक डॉक्टर रह चुका है. He has become a doctor. जब यहाँ पे बिना बोल चुके तो become क्यों बता रहे हैं आप? वह एक डॉक्टर रह चुका है. वह एक डॉक्टर हो चुका है. Become a doctor. He has been a doctor. Yes. What? He has been a doctor. Very good. Next sentence. मुझे नौकरी की जरूरत थी. I needed to ये job. मुझे एक नौकरी की जरूरत थी. पास्ट में यहाँ पे नीड का नीडेड हो जाएगा. I needed a job. I needed a job. Okay. Sentence. मुझे इन चीजों की आदत नहीं है. I don't teach. देखिए आदत होना इसके लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं. यूज टू. मुझे इन चीजों का आदत नहीं है. I'm not used to these all things. I'm not used to these all things. Okay. Next sentence.
मुझे अंग्रेजी सीखने का शौक था। I was fond of learning English. वेरी गुड आंसर। I was fond of learning English. Fond of मतलब शौकीन। नेक्स्ट। तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है? What do you need to become a hero? या जरूरत है तो व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ हीरो, और जरूरत है तो व्हाट डिड यू नीड टू बिकम अ हीरो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। I knew that you will come here. देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो जब पास्ट में सेंटेंस आता है तो यहाँ पे विल का वुड हो जाता है। ठीक है, मुझे पता था, मालूम था, आई न्यू दैट यू वुड कम हियर। ओके, वुड कम हियर। माँ खाना पका रही थी जब मैं घर पहुंचा। माँ खाना पका हाँ, रही ओके, थी। इंग्लिश बताइए। He was जब माँ खाना पका रही है, व्हाट इज ही? My mom was cooking food when I reached at home. Reached home. My mom was cooking food, या mother was cooking food when I reached home. Okay, next sentence. जब पुलिस चोर को मारेगी तब वह सब कुछ बता देगी। When the police will beat the dead. देखिए सेंटेंस यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब दो सेंटेंसेस फ्यूचर में होता है, एक प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे जब पुलिस चोर को पीटेगी तो वो सब कुछ सच बता देगा। When the police beat the thief, he will tell everything. Okay, next sentence क्या है? What is the next sentence? मैं गांव जाने का सोच रहा हूँ। I am thinking to go to village. मैं गांव जाने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे think के साथ off लगेगा, off के बाद before. I am thinking of going to village. I am thinking of going to village. जाकर उसका नाम पूछो। Having gone ask. नहीं, देखिए एक तरह का स्ट्रक्चर है, जाकर उसका नाम पूछो, तो इसको कहोगे go and ask her name. What? Go and ask her. Okay. Next sentence. जाओ जाकर नहा लो। Go and take a bath. हाँ, go and take a bath या तो go and have a bath. Okay. Next sentence. झूठ बोला जा रहा है। Lie is being spoken. या lie is being chopped. या lie is being chopped. या जा रहा है जा रही है। Peachy voice continuous tense. यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। This is your problem. It is your problem. It is your problem. Okay. Next. वे सभी गप्पे मारने में मगन थे। मग्न होना के लिए हम लोग engrossed in का प्रयोग करते हैं। ठीक है, what? engrossed in। वे लोग सब गप्पे मारने में मग्न थे। They all were engrossed in gossiping. Engrossed in gossiping. Next sentence. वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। There is not one need. No, there is no need to go there. Yes, sir. There is no need to go there. वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। There is no need to go there. खेलने की जरूरत नहीं है। There is no need to play. Like this. वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकता। He can't help meeting you. Very good. वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकता। He can't help meeting you. Next sentence. उसे शराब की लत है। He is used to wine. He is used to wine or alcohol. Next sentence. आलसी होना अच्छा नहीं है। हाँ, Lazy is not good. देखिए यहाँ आलसी होना, being lazy is not good. What will you say? Being lazy is not good. Good. Next. मुझे ऊंचाई से डर लगता है। I feel fear from height. No. यहाँ पे देखिए डर लगता है, उसके लिए scare of या तो afraid of का प्रयोग करेंगे। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। I am scared of heights. I am scared of heights. Next sentence. वह अंग्रेजी सीखने पे अड़ा हुआ था। देखिए अड़ा होना के लिए एक स्ट्रक्चर होता है bent on। क्या? bent on। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? He was bent on learning English. He was bent on learning English. Okay. Next sentence. जब पढ़ने की बारी आती है तो वह सोने चला जाता है। When come to reading, then he goes to sleep. देखिए when comes to reading होता है, जब पढ़ने की बारी आती है। When it comes to reading, he goes to sleep. इसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जब खेलने की बारी आती है तो हमेशा बैटिंग ही करना चाहता है। When it comes to playing, then he always wants to do batting, right? तो it comes to. Next sentence. गाना गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ। I like so much singing. देखिए नहीं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो उसके लिए आप कहोगे व्हाट आई लाइक मोस्ट। जैसे गाना गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज सिंगिंग सॉन्ग। क्रिकेट खेलना मुझे ज्यादा पसंद है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज प्लेइंग क्रिकेट। दिस वे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे तुम्हारा सिगरेट पीने से कोई आपत्ति नहीं है। I don't any problem
देखिए मुझे तुम्हारा सिगरेट पीने से कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है, आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग सिगरेट। So many sentences these people had been given। तो आपने देखा you saw some of the students were answering well and some of them could not answer well। तो it happens because learning में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेंटेंसेस को बनाने का कोशिश करेंगे, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका उस पर कमांड बनेगा और आप उतने बेटर तरीके से उसको स्पोकन में यूज़ भी करेंगे और रिटन में आप उसको ट्रांसलेट भी कर लेंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर रिजल्ट you will have। So guys, thank you, that's all। I hope you would have also learned a lot of things from this video। Thank you very much। Have a nice day।